Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zargam Ahmed. I am currently studying at the Dow University of Health Sciences. Today I am going to explain you the chemistry portion of MDCAT, which is reconducted by Dow University of Health Sciences. There are total 51 questions. If you have any query about this, you can come in my comment box and message me, so I will explain you that particular questions. Okay, let's start it. Okay, question number one is a falling drop of water is always spherical due to. Okay, the correct option here is the surface tension, because surface tension tends to reduce the surface area of liquid, and among all geometrical shapes spherical has the least surface area. So the correct option is surface tension. Okay, the second question is which is used to make TV and computer sciences? Um Solid, liquid, gas, and plasma. The correct option for this is plasma, because in old days for image generation plasma is used. Question number 3. Which one of the following crystal has characteristics of malleability, ductile and electrical and chemical conductivity? मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि ना हम इससे शीट्स बना सकते हैं, और डक्टाइलिटी का मतलब होता है हम इनसे वायर तार वगैरह बना सकते हैं. इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हम इससे करंट और जो हीट है वो पास हो सकती है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटालिक सॉलिड्स. Question number 4. What happens to Kc when catalyst is added to a reversible reaction? It becomes zero, it is decreased, it is increased, or it will remain the same. Okay, when a catalyst is added, the value of Kc remains same for a reversible reaction. Question number 5. The outer body of dry cell is made up of what? Zinc, carbon, graphite, or copper? The answer for this question is zinc, which is a cathode in this process. Okay, which process occurs at anode? As we all know, at anode oxidation occurs, because as we know cathode पे reduction होती है तो anode पे हमारे पास oxidation होती है. The dipole moment of CS2 is 0, because it has a linear structure and it is a non-polar compound. Which one of the following has a trigonal pyramidal shape? Okay. चार ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे. H2O का हमें पता है एंगुलर और बेंट शेप होता है और वी शेप होता है. BF3 का हमें पता है ट्राइंगुलर और प्लेनर होता है. NH3 है हमारे पास वो जिसका पैरामिडल शेप होता है. CH4 का हमें पता है टेट्राहेड्रल होता है. Okay, क्वेश्चन नंबर 9. इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिपेंड्स अपॉन. ओके, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. मीन्स एक तरीके से हमें बात हो रही है स्टेट फंक्शन की. तो यहाँ पे आपको ये बात दिमाग में बिठा लेंगे कि हमारे पास सिर्फ ऐसी दो ही वैल्यूज़ हैं, एक हीट है और वर्क डन है, जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है. बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास जितनी भी आई थिंक केमिस्ट्री में होती हैं वो सारी स्टेट फंक्शन ही होती हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी. In a chemical reaction, the order of reaction is, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 ऊपर जाके एक्सपोनेंट हो जाएगा रिएक्टेंट का, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2. जनरल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज वी ऑल नो द जनरल गैस इक्वेशन इज मेड अप ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. क्वेश्चन नंबर 12. Small repeating patterns on which a crystal lattice is built is known as. Option A crystal system, B crystal habit, option C unit cell, option 4 cell parameter. So इसका करेक्ट जवाब है unit cell. क्वेश्चन नंबर 13. Kc is also called, Kc को और क्या कहा जाता है? तो इसका हमारे पास सही जवाब हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp होता है. रिएक्शन कोशेंट ये हमारा Q होता है, और K हमारा होता है रेट कांस्टेंट. ओके, फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया है. तो सेम हमारे पास रिएक्टेंट में से एक ही रिएक्टेंट उसमें 2 लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 15. इफ इन अ रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज. रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माइनस डी ए ओवर डी टी। क्वेश्चन 16, एट ऑर्डिनरी कंडीशन फॉर्म एल्डिहाइड इज। फॉर्म एल्डिहाइड हमारे पास एट ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्म एल्डिहाइड होता है वो होता है हमारा गैस। क्वेश्चन नंबर 17, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज। ओके इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हाई, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन तक, क्योंकि उनमें हाई नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इसलिए हम कहेंगे इसका जवाब है अल्फा हाई। क्वेश्चन नंबर 18, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें हम आपसे पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अल्फा, यही हमारा है करेक्ट ऑप्शन। फैट सॉल्युबल विटामिन आर, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे होते हैं ए डी ई एंड के, ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। जबकि वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, बी एंड सी। Question number 20, maximum amount of product is obtained by balancing a chemical equation by using। कि मतलब हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे मिलती है, थ्योरेटिकल यील्ड से मिलती है, प्रैक्टिकल से मिलती है या एक्चुअल से मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। क्वेश्चन नंबर 21, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज। ओके it is a very easy question. In this question, as we know, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास एटॉमिक मास हमारे पास होता है 16, तो हम और वाटर का टोटल हमारे पास H2O का होता है 18। हम 16 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.88। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच वन प्रोड्यूस। ओके लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि रिएक्शन में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो हम कहेंगे इट विल इज द वन विच प्रोड्यूसेस द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो ऑप्शन हमारा ए है हमारा वही हमारा सही होगा। न्यूक्लियोफाइल इज आ, जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, न्यूक्लियस लिविंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है हमारा। तो ऑप्शन बी जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस एग्जिस्ट इन लिक्विड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल पॉइंट, बी फ्लेम पॉइंट, सी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डी ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा मतलब एक वो टेम्परेचर होता है जिसमें हमारे एक जो कंपाउंड होता है वो 2 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, वो हमारा कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो हमारे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस एग्जिस्ट इन लिक्विड, इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 25, elimination reaction in which only substrates involved in redetermining step is। okay इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो रिएक्शन वो बताओ जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो हमें पता है उसका होता है वो क्या होता है हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके टॉल्यूशन रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ड्रॉप्स ऑफ NaOH विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव वाइट पीपीटी ऑफ। किसके वाइट पीपीटी देता है, हमें पता है ये देता है सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड के। और हमें जो पीपीटी मिलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के, इसको हम डिसॉल्व करते हैं और जब हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्म कर देता है टॉल्यूशन रिएजेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द चेंज इन pH। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बफर, ऑप्शन नंबर डी बफर। ओके क्वेश्चन नंबर 28, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट प्रोड्यूसेस। ड्राई डिस्टिलेशन मीन्स होता है थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर कैल्शियम एसीटेट, इसका जवाब हो जाएगा हमारा एसीटोन, जिसको हम प्रोबानॉन भी कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता कैल्शियम फॉर्मेट तो इसका जवाब हो जाता फॉर्मिक एसिड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। ओके द नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है इसको हम और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। ओके तो हमारे पास एक होती है स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है जिसमें एक वैल्यू के बाद हमारे पास आता है डेसिमल। तो हमने वो फाइंड आउट करना है जिसमें एक नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल हो, और यहाँ पे सब में ही है तो हम इसको एक्सपोनेंट में करके देख तो हम इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। हम पीछे लेंगे इस पॉइंट को जो कि 0 के बाद लगा हुआ है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट 4।
ओके 7.5 एक्सपोनेंट 4 ये हमारा हो जाएगा करेक्ट जवाब। एक्स रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसका जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी रोएंटिजन। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ना इसका कोई चीफ और बताएं जिससे एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका आपका जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। ओके इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड कॉपर इज 100% प्योर होता है वो। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयरन निकल एंड क्रोमियम। ओके ये सॉरी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ओके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके in the orbital of atom no two electrons can have the same number of same amount of same set of quantum numbers। तो हमें पता ही हमारी ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। क्वेश्चन नंबर 35 क्रैकिंग इज एम्प्लॉयज टू गेट इंक्रीजिंग क्वालिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसोलीन फ्रॉम, इसका जवाब है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग हमारा होता है हाई हाइड्रोकार्बन की चेन्स को तोड़ के हम लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ये होता है हमारा क्रैकिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 36 अ रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंस एंड यील्ड अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बेंजीन was first isolated from coal tar by Hofmann. Fuming sulfuric acid at room temperature reacts with benzene to form benzene sulfonic acid. Replacement of one or more hydrogen atom of methane with halogen is ये हमारा है halogenation। ओके बी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन, वैसे तो बी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जिसमें हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा व्हाट इज द शेप ऑफ डायमंड। तो डायमंड का हमारे पास जो शेप होता है वो होता है हमारा टेट्राहेड्रल होता है, और इसके अंदर जो एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से अटैच होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं बचता। यही वजह है कि ये एक बैड कंडक्टर और इंसुलेटर भी है। क्वेश्चन नंबर 43 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद नेगेटिव चार्ज, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसकी स्टेटमेंट है, ये है नील बोहर की स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 विच रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैज़ हाइएस्ट पेनिट्रेशन पावर, इसका हमारा जवाब है गामा रेस। क्वेश्चन नंबर 45 द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, ये हमारा क्या था रीफॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 पेट्रोलियम मीन्स जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ, ये जवाब है आपका, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हेक्सेन एंड हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 47 एसिटाइलिन जिसको हम मिथाइलिन भी कहते हैं इज पास फ्रॉम रेड हॉट ट्यूब टू प्रोड्यूस व्हाट, इसका सही जवाब है बेंजीन। कैसे, थ्रू टेरिमाइजेशन। 48 methanol is also called wood split, book lining है तो, which is called as ink preservative, इसका जवाब है फिनॉल। पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन आयन इज नोन एज ऑक्सीनियम आयन कहते हैं उसको। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द स्टेटमेंट ऑफ, जी किसकी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है ग्राहम्स लॉ की। ओके यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ओके थैंक यू गाइस, मेट यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।